You are listening to SKIT Podcast Stories Worth Telling. Hello everyone, welcome to SKIT Podcast Stories Worth Telling. Today we have a very special guest with us. He is founder and CEO of Cognomen, VP AI at the Lab. He has filed 6 patents and 2 new in progress. He was cloud engineer at Microsoft. 40 under 40 power list, Rajasthan, India. Wow, sir. Let us welcome Mr. Kalpit, sir. Hello, sir. For having me here. यस सर. तो कैसे हैं आप सर? कैसा लग रहा है आपको आज? I think I'm feeling good. Little nervous. This is like a very good podcast platform here. So yeah, I'm feeling good. Thank you so much for this opportunity. Yes sir. So as a title says, SKIT podcast stories worth telling. Let us start with your story. आपकी क्या स्टोरी रही? How was your journey so far? कैसे फील्ड्स को डिस्कवर किया? कैसे आपने एक कंपनी बनाई? तो आपकी स्टोरी क्या है सर? Cool. So I think right from my college, I got this company called CGI, and I worked there as a software engineer for 2 years. And post that, I worked with Pratham, that's near in Jaipur only. And I got an opportunity to work with Microsoft post that, and I was working with their Azure team. And after Microsoft, I was working with Dover Filling Solutions, and there I was the technology lead. And during that time, I got an opportunity to visit Cambridge University as well. And post that, the time came when I wanted to start my own startup. So I started, coming back to India and started a startup called Cognomen. And during COVID times, I think we were really doing great. However, due to some circumstances, we were not able to raise further funds. So that time, I think we actually hold that particular idea for some time. And then I started to work for Flam as the Vice President of Artificial Intelligence. And at Flam, I think we are literally doing a great job. Lot of investment we have taken now from investors. And this is again, a company which is building products in mixed reality and metaverse. Sure sir. Sir, जैसे Microsoft is a very big thing for an engineer to achieve. So how was your experience at Microsoft? को मतलब जब आपने उसको crack करा and you went to the campus of Microsoft. Yeah, I think Microsoft was a great opportunity for me, and I think it's a dream company for everyone. Yeah. So it was, it was a great learning experience. The you interacted with those people whose blogs you used to read on internet. Right now, you are working with those people, and my team was very great. Yeah, I think they have got few awards also for my performance, and that was a very great time. But then, I got another opportunity where I could see my personal growth to move on further. So that's when I got Dover Filling Solutions. Yes sir. Sir, a kind of a critical question because when we see personal growth, एक factor होता है कि does मेरे को salary उतनी मिल रही है क्या उस जगह, because we are changing companies, तो we expect कि हमारी personal growth ज़्यादा हो, but at the same time we sometimes लोग की salary कम है तो उसको छोड़ देते हैं. तो आपका क्या take रहेगा कि अगर personal growth हो रही है तो क्या salary matter करनी चाहिए उस जगह, या फिर salary अगर ज़्यादा है तो क्या कंपनी छोड़ दे जहाँ पे growth नहीं है वहाँ पे कुछ? यार देखो, दोनों ही चीजें important हैं. We are not working for free anywhere, and our ultimate goal should be like, we should earn for what we are doing. तो कभी कभी ऐसा होता है when you are in learning stage, right? Your focus should not be money at all. तो जैसे मेरा था स्टार्टिंग में, आई वॉज वर्किंग ऑन अ वेरी नॉमिनल पैकेज, जो ज़्यादातर किसी भी स्टूडेंट का लगता है, राइट? इवेंचुअली दैट माई फोकस वॉज टू लर्न टू एन एक्सटेंट वेयर नाउ आई एम रेडी टू लीड अ टीम. सो लेट्स से आपने काफ़ी सारी मेहनत कर ली है, नाउ आपको पता है कि कंपनी में क्या हो रहा है, नाउ आपको पता है कि आप क्या बना रहे हो, नाउ यू आर ऑल्सो मैनेजिंग द टीम.
and then you come to your manager and say, hey, I'm ready for my next role. Can you just give me the next role? So sometimes it is more related to money, where you already know that you're already below a bar where your colleagues and other friends who are working on the same designation are getting more money. And now the place where you are, that you would be finding that if your current company can give you that opportunity where you'll get the same amount of money which you are expecting, that time you have to take a decision. But for me, it's like, I always go with this line called never settle. So it's like, do something good. If the company is literally growing according to your fast pace, and they are also giving you those opportunities in house, it's good. And if they're asking you to wait, please wait there. If you're feeling that the things are not going in the right direction, I literally jumped actually. So if you see my whole career, I worked with multiple domains, multiple companies, which one way is a strength for me, because now I know what different domains are there, what different technologies are used in those domains. So that makes you prepared for, your entrepreneurship journey also. So if, let's say, if I'm working with single domain, you will not be facing the other, use cases if you're working on a particular technology, as assume AI or blockchain. So there are multiple domains where these technologies could also be used. So when you go on an entrepreneur journey, you know other domains as well. So you will find potential customers in those domains also, because you now know the domain very well. So it's not just money, it's about your personal goal also, that what you want to be in a long-term goal of, let's say, 10 years. And then it can also be, thought of like, what other companies providing you in terms of your growth or your role actually, right? So this is a kind of measurement. You can think of it, but don't always go with money, because I have seen few of my friends, they have actually landed to very good companies. They're earning a lot of money, but sometimes they have very less mental peace. Yeah, that is also one consideration which you can think of. Yes. But I would rather focus upon you plan your goal, and if the new company where you want to jump onto is coming under the same goal, you jump. Otherwise, stay, because having good relation with the current company will gonna help you to grow and getting to the senior positions as well. Yes, sir. So, like you mentioned about entrepreneurship journey, so let's talk about entrepreneurship as well. So, sir, making your own company. So, what are the hurdles you faced? Because as an engineer, you are trained to get a job. Initially, in 4 years of college, you are trained to get a job, and after that, most of the people have the mindset of getting a job. But only few people go to make their startups. So, what are the hurdles you come up, and what will you advise to people who are going to start startup, and what are the ways of doing their startup? यार देखो, हम जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हमारा जो कल्चर था, इट वाज नॉट दैट मच फोकसिंग अपॉन एंटरप्रेन्योरशिप. उस समय आई थिंक द होल वर्ल्ड वाज गोइंग थ्रू द आउटकम्स ऑफ द रिसेशन. I was like, in 2012 I did my engineering, and in 2008 the whole recession was happening, right? So those days I think the focus was to get something where we will be able to earn, because these VC firms and investment was not very popular those days. तो उस समय हमारे केस में तो ऐसा नहीं था, but I think now the time has changed. You can easily get funds. Government is also supporting a lot. तो ऐसा हो सकता है कि मतलब जैसे आज की डेट में तुम अपना गोल डिसाइड करो कि भाई तुमने कॉलेज में जो सीख लिया है वो इनफ है. क्या तुम्हें एक एकेडेमिया डायरेक्शन में रहना है, तो यू कैन परस्यू योर PhD. अगर तुमको रहना है कि नहीं यार मुझे अभी टेक्नोलॉजिकली ही कुछ करना है, तो आई विल बी सर्चिंग फॉर सम जॉब्स जो उस चीज़ से अलाइंड है. एंड ऑलवेज हैव अ गोल. ऐसे नहीं कि यार मैं कुछ भी कर रहा हूँ एंड यू जस्ट डिफाइन कि भाई मुझे बनना क्या है, मुझे AI फील्ड में जाना है, या व्हाट टाइप ऑफ इंजीनियर यू वांट टू बी, राइट? अगर ये सब भी नहीं हो रहा है, तो व्हाट आई वुड से इज लाइक टू फाइंड आउट अ गुड प्रॉब्लम जहाँ पे तुम्हें बहुत बड़ा मार्केट दिखता है. एक बनिया बन जाओ और सोचो कि यार मैं कहाँ से पैसा कमा सकता हूँ. क्योंकि हम सब जो भी कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर मोरल थिंग्स, उनको साइड में रख दो, तो एट देन यू शुड गेट अवार्ड ऑल्सो, राइट? तो ऐसा है कि मतलब सोचो कि यार मैं अगर कॉलेज में हूँ, मुझे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिख रहा है, क्या मैं उसको टेक्नोलॉजी के साथ सॉल्व कर सकता हूँ? क्या टेक्नोलॉजी उसमें बड़ा रोल प्ले कर सकती है? नहीं कर सकती तो क्या वो बिना टेक्नोलॉजी के भी पॉसिबल है? थिंक अबाउट दोज थिंग्स एंड स्टार्ट इट. आई मीन कॉलेज के टाइम पे
तुम्हारे पास एम्पल टाइम है, राइट? जब तुम जॉब करोगे तो शायद तुमको इतना एम्पल टाइम ना मिले ये सब सोचने के लिए कि मुझे स्टार्टअप करना है, मैं कैसे करूँगा, फिर तुम्हें जॉब भी करनी है साथ में, राइट? और ड्रॉप ऑफ तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, राइट? कि भाई मैं ड्रॉप ऑफ कर रहा हूँ जस्ट टू गेट द आइडिया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? तो ऐसा करो कि हमेशा जो टाइम है कॉलेज का उसको यूटिलाइज करो टू फाइंड आउट आइडिया जो तुम पढ़ रहे हो वो कैसे यूटिलाइज हो सकता है डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग में। वो टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो सकती है, वो किसी डोमेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो किसी बिजनेस की भी हो सकती है, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की भी हो सकती है। वो रिलेटेड तो हो सकती है कि मैं भाई ट्रेन की टिकट बुक करता हूँ तो कभी कंफर्म होती है कभी नहीं होती है, राइट? तो ऐसे सारी प्रॉब्लम्स को सोचो। तो अगर तुम एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में जा रहे हो और आज की डेट में अगर तुम वो नहीं कर रहे हो तो आई वुड से कि तुम अपने साथ गलत कर रहे हो, राइट? तो ऐसा सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, पूरा वर्ल्ड तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, वीसी फर्म सपोर्ट कर रही है, तुम्हारा आइडिया अच्छा होना चाहिए, यू विल बी एबल टू गेट सम फंडिंग ऑल्सो। फंडिंग भी हो रही है अभी, राइट? पहले नहीं होता था ऐसा, अभी फंडिंग भी हो रही है। और द बेस्ट पार्ट इज अगर तुमने अच्छा काम किया है तो तुम्हें फंडिंग की भी जरूरत नहीं है, राइट? तुम छोटे से अमाउंट से बूस्टअप करके भी कर सकते हो। तो दिस इज द एरा जहाँ पे तुम्हें सोचना चाहिए कि भाई मैं एक बड़ी कंपनी कैसे खड़ी कर सकता हूँ और कैसे मैं उसको आगे लेके जा सकता हूँ, राइट? सो आई थिंक दिस इज हाउ आई वुड लाइक टू एंड कि मतलब राइट टाइम है, राइट सिनेरियोज है, तो वेट मत करो कि भाई जॉब लगेगी एंड ऑल दैट, कर दो स्टार्ट, राइट? एंड एनीवेज अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, तुम्हारा गोल उस तरह से सेट हो रहा है तो जॉब इज आल्सो नॉट अ बैड थिंग, राइट? इट्स गुड, यू आर गेटिंग सम लाइवली एंड देयर आर लॉट ऑफ लर्निंग। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें दूसरों के साथ जो मैच्योर, जैसे अज्यूम करो कि भाई कोई बंदा ऑलरेडी मैच्योर्ड है, तुम उसके साथ हो, तुम्हें सीखने को मिल रहा है, तुम वेट करो, उस बंदे को ऑब्जर्व करो, उस कंपनी को ऑब्जर्व करो, कैसे वो कर रही है, क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, कैसे किया उसने, तो उसमें रिस्क कम हो गई एंड देन यू स्टार्ट योर स्टार्टअप, राइट? दोनों ही चीजें हैं, मतलब हाउ यू वांट, बट रिस्क लेके और फेल होके आदमी सीखता है। तो अभी से स्टार्ट करो, कल का वेट मत करो। यस सर, वही चीज लोहा घर में मार दो थोड़ा। यस एग्जैक्टली। तो सर जैसे इफ आई हैव एन आइडिया अबाउट एनीथिंग, एनी प्रोडक्ट, नाउ द प्रॉब्लम इज इफ आई हैव द आइडिया, नाउ आई हैव टू मेक अ कंपनी अराउंड इट। सो व्हाट इज द थिंग आई शुड कीप इन माइंड कि अगर मैं कंपनी बनाने जा रहा हूँ तो क्या क्या मेरी थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए, क्या मेरा एग्जीक्यूशन होना चाहिए, क्या मेरे लोग होने चाहिए आसपास कि मैं एक सक्सेसफुल फर्म क्रिएट कर सकूं? देखो बहुत सही क्वेश्चन है, मतलब यही हर्डल है स्टार्टिंग का। तो सबसे पहले आप अपने आइडिया को वैलिडेट करो, लोगों से बात करो। ऐसा मत सोचो कि मेरे पास आइडिया, मैं किसी शेयर नहीं करूंगा, लोग मेरी कॉपी कर लेंगे, वो ऐसा नहीं होता। सीधे अश्विन ग्रोवर या कोई भी लोगों को दोगे तो दे से दे कि भाई द एग्जीक्यूशन प्लेज अ मेजर रोल। आपका आइडिया आपको लग रहा है यूनिक है, पर वर्ल्ड में कितने सारे लोग हैं, मतलब एवरी सिंगल आइडिया यू आर सर्चिंग, देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल सर्चिंग एट द सेम मोमेंट अबाउट द सेम आइडिया, राइट? तो आप कुछ नहीं, एग्जीक्यूशन है। आइडिया सबको भी आता है ना, आंख में बैठे दिन में आदमी करता है कि आइडिया ही सोचता है, पर जिसने वो एग्जीक्यूट कर दिया, एंड तक ले गया, वही सक्सेसफुल हुआ है ना। तो आपके दिमाग में कोई आइडिया, पहले सोचो कि क्या जो तुम प्रॉब्लम जो तुम सॉल्व करना चाह रहे हो, क्या एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम सच में एग्जिस्ट करती है। अगर करती है तो वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि मैं इससे 5 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए कमा लूंगा। इट्स मोर ऑफ कि अगर मैं उसका एलसीएम लूं, अगर मैं डिनोमिनेटर लूं, राइट, कि भाई ये कॉमन, ये जो प्रॉब्लम है ये मेरा किन किन डोमेन में किन किन लोगों में कॉमन आ रहा है, राइट? तो तुम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। जैसे अगर मैं पहले मैंने बोला ट्रेन टिकट की बात कर रहा हूँ या कुछ भी ऐसा जनरल यूज केस, तो उसमें वो डोमेन बहुत बड़ा हो जाता है। तो तुम्हें पता है कि हाँ भाई अभी मैं इस डोमेन का भी छोटा पार्ट फोकस करूंगा, जैसे स्टूडेंट्स और लेट्स से वर्किंग प्रोफेशनल्स, बाद में मैं बाकियों को भी ग्रैब कर सकता हूँ। तो पहले अपना आइडिया का वैलिडेशन जरूरी है कि आप जो सोच रहे हो लोगों के साथ डिस्कस करो, एक उनसे फीडबैक लो, राइट? एंड देन फाइंड आउट कि भाई उसको सॉल्व करने के लिए अभी कैसे सॉल्व कर रहे हैं लोग, तुम उसको कैसे सॉल्व करोगे। भाई हर चीज जो हो रही है उसका कुछ तो सोल्यूशन है, कैसे भी है, मैनुअल है या टाइम टेकिंग है, कुछ भी है, पर सोल्यूशन तो हो रहा है भाई। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम तुमने ऐसी ढूंढ ली जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। आज के डेट में होगा, 100% होगा। और एडमायर करो उन लोगों को जो लोग ऑलरेडी उसको सॉल्व कर रहे हैं। नाउ योर पार्ट इज कि उस सोल्यूशन में क्या कमी है, कमी कैसे भी हो सकती है, जिस टाइम टेकिंग, या वो बहुत कॉस्टली पड़ रहा है लोगों को, या उसमें टेक्नोलॉजी बहुत कम इन्वॉल्व है, उसमें ऑटोमेशन नहीं है। अगर मैं उसमें से वर्कफोर्स हटा दूं, ऑटोमेशन कर दूं, तो मैं शायद इसको इजीली और फास्टर वे में और एक्यूरेट वे में कर पाऊंगा, राइट? तो ये सब चीजें समझने की कि भाई मैं किस जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं उसको किस तरीके से अच्छे तरीके से सॉल्व करूं जो बाकी कर रहे हैं। तो ये सब आइडिया वैलिडेशन का पार्ट है। उसके बाद यू थिंक ऑफ कि यार अब मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, इसमें मैं धंधा कैसे बनाऊंगा, राइट? पैसे कहां से कमाऊंगा? तो पैसे कमाने के लिए तो
यू हैव टू फाइंड आउट कि अभी कुछ जैसे स्टार्टअप्स हैं वो लोग बहुत पैसा बर्न करते हैं मार्केटिंग में और यूजर को रिटेन करने में या उनको ऑनबोर्ड करने में। डिजिटल मार्केटिंग चल रही है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चल रही है, राइट। तो यू प्लान कि भाई आइडिया अगर बहुत ज्यादा ऐसा है तो वो कभी कभी क्या होता है, सेल्फ फ्लोरिश होता है। तो ऐसा होता है ना कि एक से दूसरे पे गया, दूसरे से तीसरे पे गया, वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ यू कुड से। तो ऐसा है कि वो आइडियाज बहुत जल्दी फ्लरिश हो जाते हैं, तो वहां पे तुम्हारी कॉस्ट बच जाएगी। तो थिंक ऑफ इनोवेशन, इनोवेटिव आइडियाज। ऐसा नहीं कि यार उसने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा करूंगा। लोग आजकल डिजिटल मार्केटिंग के पीछे पागल हो रहे हैं कि यार कुछ नहीं तो कैंपेन चलानी है यार, तो देना ही है। नहीं भाई, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हो तो कुछ ना कुछ ऐसा निकाल के लाओ कि जहाँ पे ये सब की जरूरत ही ना पड़े। एंड दैट्स वेयर द कंपटीशन इज। जिसने ये इसके बिना कर दिया वो आगे बढ़ गया, और जो लोग पैसा खर्च करते रहे वो आज भी पैसा खर्च कर रहे हैं, वो प्रॉफिटेबल नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स इफ यू सी, अभी जो चलता है कि वो स्टार्टिंग में दे वेरी गुड एंड इवेंचुअली व्हेन दे गेट मोर फंड्स टू एक्सपेंड रैपिडली, क्योंकि इन्वेस्टर्स उस पर फोकस कर रहे हैं कि भाई हमारा पैसा जल्दी बनाओ, तो यू हैव टू स्पेंड रैपिडली, उसमें उनको अपना क्वालिटी फोकस सब खो देते हैं। तो पूरा प्लान करके चलो कि यार ऐसा नहीं कि आइडिया मैंने सोच लिया, मैं 2 महीने की प्लानिंग कर रहा हूँ कि नहीं भाई इसमें ये फीचर दूंगा, और बहुत स्कोप सा, एक ही फीचर की बात करो, मत करो 100, 1000, 5000 फीचर्स की। बहुत स्कोप, टाइट स्कोप रखो हर चीज का। तो दिस वे यू कैन थिंक ऑफ स्टार्टिंग अ स्टार्टअप। ओके सर, सो स्टार्टअप्स की हमने बात करी, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी, अब जॉब्स के बारे में बात करते हैं। सो एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ सीईओ ऑफ योर कंपनी, व्हाट काइंड ऑफ कैंडिडेट यू सी परफेक्ट फॉर द जॉब, जो कि अभी जॉब के लिए सर्च करे, कि कैसे वो जॉब के लिए प्रिपेयर करें, क्या उनकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, कैसे वो अपने आप को मैनेज करे कि वो अपीलिंग लगे एज अ कंपनी को। ये देखो, मैं 2 तरह के मतलब जनरली जो कैंडिडेट्स हैं वो 2 हैं। तो प्रोफेशनल जो ऑलरेडी वर्किंग इन सम कंपनी, एंड द अदर वन हु आर फ्रेशर्स। सो लेट्स फोकस ऑन बोथ। तो फ्रेशर्स की बात करते हैं बिकॉज आई थिंक दैट विल बी द राइट टॉपिक टू डिस्कस हियर। फ्रेशर्स को क्या है ना कि खुद को बनाना है, अभी उनको कोई हायर नहीं करना चाहता। तो ऐसा होता है ना, तुम घर बना रहे हो, एक मिस्त्री आ रहा है, तो तुम किसको दोगे काम? एक मिस्त्री जिसको ऑलरेडी घर बनाना आता है, या एक नौ से किया जिसको कुछ नहीं आता है, राइट? इट्स अ डिबेट, राइट? तो वही है। तो अगर आपने बोला कि भाई मैंने देखो ये घर बनाया था और मैंने अच्छे से चिनाई करी थी, उसको अच्छे से फिनिश किया, आई आर्किटेक्टेड इट वेल, तो आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड कि हाँ ठीक है, इसको मेजर मिस्त्री ना बना के उसका साथ में एक सब मिस्त्री बना देता हूं, तो वो भी इज अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेशर ना। तो ऐसा है कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर डे वन इटसेल्फ कि भाई मैं जो भी पढ़ रहा हूं, राइट, उसको मैं कैसे एक एप्लीकेशन में या उसका एक एप्लीकेशन ढूंढ लूं, या जो भी मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं और जो मैं पढ़ रहा हूं उसमें कहीं मैं गैप कम कर लूं, राइट? तो मैं एक पोर्टफोलियो बना लूं कि बहुत एग्जाम्पल सा, जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं ब्लॉकचेन की बात कर रहा हूं तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड हैश टेबल्स। तो डीएचटी मैंने पढ़ लिया है, ब्लॉकचेन एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है, तो शायद मुझे नहीं समझ में आ रही हो बीइंग अ स्टूडेंट, लेकिन मैंने क्या किया, गिटहब खोला और मैंने अपना डीएचटी एक पाइथन की कई सारी स्क्रिप्ट बनाई, मॉड्यूल बना दिया, उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड हैश टेबल पूरा इंप्लीमेंटेड है, एंड यू आर फोरकास्टिंग दिस ऑन योर रेज्यूमे। तो वहां पे आप ये नहीं लिख रहे हो कि यार मैंने एक वेबसाइट बनाया, मैंने कॉलेज के इवेंट को होस्ट करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया। वो कोई वैल्यू होल्ड नहीं करता है बीइंग अ कंपनी, क्योंकि वो काम मशीन्स खुद कर सकती है, या फिर मैं किसी से भी करवा सकता हूं, क्योंकि उसमें रिस्क कम है कंपनी की, राइट? लेकिन जब मैं डीएसटी की बात कर रहा हूं, दैट इज द कोर ऑफ ब्लॉकचेन, राइट? तो वो आपने ऑलरेडी किया है स्क्रैच से, तो तुमको पता है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई थी, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपने फेस करी। तो रिज्यूमे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जब भी बीइंग अ फ्रेशर आपको खुद को शोकेस करना है, उस शोकेस में कमी मत छोड़ो, और उसमें ऐसी चीजें मत लिखो जो बहुत इजीली अवेलेबल है लोगों के लिए। मैं अगर बोलूं मेरे लिए कि भाई मैं एक वेब डेवलपर हूं और मैं एक अच्छी डिजाइन बनाता हूं, वो करता हूं, तो यार आजकल तो जनरेटिव एआई का जमाना है, राइट? तो अगर आप डिजाइनिंग मॉड उसमें जाना चाहते हो फील्ड में, तो यू हैव टू बी दैट देन कि भाई आप बहुत अच्छे डिजाइन बना रहे हो, तो वो अप्रिशिएबल उस डोमेन में होगा। बट बीइंग इनटू इंजीनियरिंग, आप वहां पे बोलो कि यार मैं अगर फ्रंट एंड की बात कर रहा हूं तो एक ये फ्रेमवर्क बनाया है मैंने, और आई अंडरस्टूड अनदर फ्रेमवर्क जो पुराने फ्रेमवर्क को ये इनहेरिट कर रहा है, एंड दीज आर द न्यू फीचर जो उस फ्रेमवर्क में नहीं थे, राइट? या अगर मैं बात करूं कि भाई मैं यहाँ पे कॉलेज में देख रहा था कि बच्चों का ध्यान कम लगता है ड्यूरिंग दीज मंथ्स, तो मैंने उनको उस पढ़ाई पे फोकस करने के लिए आई बिल्ड अ टूल। क्या टूल बनाया, उसमें डिटेल में जाओ,
इट्स नॉट जस्ट दैट कि यू हैव टू स्पेसिफाई कि मैंने ये एल्गोरिदम ली, बट स्पेसिफाई द फ्लो. तो हम लोग क्या सोचते हैं, मतलब बीइंग इनटू द पैनल हम लोग ये सोचते हैं कि यार बंदे का थॉट प्रोसेस क्या है. अगर मैं उसको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दूंगा तो वो जस्ट ऐसे करके बोल देगा या फिर डिटेल में बताएगा. कि जब भी मैं कुछ बनाऊंगा, ऐसे अगर मैं दीवार खड़ी करने की बात कर रहा हूँ तो यू शुड नो द प्रोसेस कि भी मेजर करना है, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर गैप होना चाहिए, गैप भी कितने सेंटीमीटर्स का होना चाहिए, स्ट्रेट दीवार को बनाने के लिए नीचे लेवल कैसा रखना है, वाटर लेवल, कौन कौन से टूल्स हैं बनाने के लिए, तो यू शुड नो दैट, राइट. तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि इस बंदे ने गिटहब पे कितना काम किया है, अगर आपने कुछ कोड लिखा है तो कितना लिखते हो, आप हैंड्स ऑन हो या नहीं हो, हाउ मच ट्रेनिंग यू वुड बी नीडिंग. आप हमको हायर कर ले तो आपको कितना ट्रेनिंग देना पड़ेगा हमको, आपको मतलब कि हाउ मच द इन्वेस्टमेंट वुड बी टू ट्रेन यू, एंड हाउ इज योर थिंक प्रोसेस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स. तो वो सारी चीजें इवेल्युएट करते हैं एंड देन वी फाइंड आउट. तो देखो, अगर मैं क्राइटेरिया की बात करूँ तो जो पूरा रिज्यूमे सिलेक्शन है उसमें 3 कैटेगरी में ऐसे ओपनली बोल सकता हूँ. पहला कैटेगरी तो ये हो गया कि भाई यू आर कमिंग फ्रॉम अ टियर 1 कॉलेज, तो हम लोग ज्यादातर उनको चांस देते हैं, राइट. मैं नहीं बोल रहा कि हम लोग टियर 1 कॉलेज को ही चांस देते हैं, उनको ही सेलेक्ट करते हैं, वो किसी कंपनी का प्रोसेस होना भी नहीं चाहिए एंड वी डोंट डू दैट ऑल्सो. वी गिव देम चांस क्योंकि वी नो दैट कि भाई उन्होंने बहुत मेहनत करी, उन्होंने जेई क्रैक किया है, दे आर इनटू द टॉप 100, गॉट दिस सीएस ब्रांच इन आईआईटी बॉम्बे एंड ऑल दैट स्टफ. So we give them chance, and most of them they do very well in interviews because their culture is like that. Right. The other category is referrals, जहाँ पे the employees who are working along with us already, we have built a very good trust. It's a family, right? And a family member introducing a new person is always a truthful decision, right? तो वहाँ पे we have another category. तो वेटेज ऐसा होता है कि यार हमने बोल दिया कि यार 30% यहाँ से लेंगे, 30% यहाँ से लेंगे, बाकी 30-40% जो रैंडमली हमारे पास रेज्यूमे है वहां से लेंगे. तो ऐसे कैटेगरी होता है और उसके बेसिस पे भी डिसाइड. तो और जो थर्ड कैटेगरी है वो है कि भाई हमारे पास हमारी वेबसाइट पर जो रेज्यूमे ड्रॉप बॉक्स है हमारा वेबसाइट पर, या लिंक्डइन से आ रहा है, या जो भी हमारी एडवर्टाइजमेंट है ऑफ द जॉब्स ऑन इंस्टा हायर और एनी अदर प्लेटफॉर्म, वहाँ से ऐसे ही दे आर कमिंग, रेज्यूमेज आर कमिंग, तो वहाँ पे भी शॉर्ट लिस्ट. तो वहाँ पे हमारा क्राइटेरिया ये होता है कि व्हाट दिस पर्सन हैज डन. तो जनरली वी हैव फ्यू पर्सन जो रिज्यूमे रीडिंग करते हैं, फाइंड आउट कि कितना कैपेबल है. तो अगर आपका रिज्यूमे ऐसा है जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको, तो वी विल, बिकॉज़ वी हैव थाउजेंड्स ऑफ रिज्यूमेज एंड वी हैव टू सिलेक्ट जस्ट 5 or 10 पीपल हु विल रियली गोना फिट टू द कल्चर वी हैव. तो इट्स लाइक अ क्विक डिसीजन कि भाई जल्दी से नेक्स्ट वाला. आपने अच्छा बनाया है, आप उसमें गिटहब मेंशन कर रहे हो, आप बता रहे हो कि आपने कितना कोड किया, आप पूरा प्रोसेस बता रहे हो, आपने स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं किया तो बट आप एक आइडिया है आपके पास, एंटरप्रेन्योरशिप में आपने आइडिया किया, नहीं हुआ वो ढंग से, इट्स ओके, बट पुट इट देयर कि भाई आई हैड दिस आइडिया, आई क्रिएटेड दिस, मैंने टीम बनाई, वो नहीं है, बिकॉज वी हैव मैनेजरियल पोस्ट आल्सो, ओपनिंग्स आल्सो, राइट. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो स्टूडेंट को फोकस करना है कि ओवरऑल ना डेप्थ में जाए, मतलब कि हर चीज का डेप्थ देखो, प्रोसेस देखो, फ्लो देखो, तो दैट विल गोना हेल्प. सो या ओके सर, एक बहुत मेजर कंसर्न रहता है स्टूडेंट्स के पास कि ठीक है हमने सब कुछ कर लिया, रिज्यूमे बना लिया, लिंक्डइन मैनेज कर लिया, बट हाउ टू रीच कंपनीज को अगर अप्रोच करें, कैसे ईमेल्स करें, उनकी मतलब कि जो जॉब ओपनिंग्स निकालते हैं उसमें करें, बट व्हाट इज द बेस्ट वे टू अप्रोच अ कंपनी? आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू अ वेरी गुड स्टार्टअप रिसेंटली. तो वो लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. तो वो लोग क्या करते हैं कि कंपनीज के जो अंदर के एम्प्लॉयज हैं, सो देयर इज अ क्रोम एक्सटेंशन अवेलेबल. तो आप वो क्या करता है कि कंपनीज के जो एम्प्लॉयज उनको रिज्यूमेज भेजता है कि भाई आप इसको रेफर कर दो. एंड आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन हाउ फाइनेंशियली इट इज वर्किंग, बट दिस हाउ इट इज, राइट. तो रेफरल एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो ये मैं कहना चाह रहा था इस चीज से कि अज्यूम करो कि आपके फ्रेंड सर्कल में देयर आर पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग, एंड आई नो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आपके फ्रेंड सर्कल में आईटी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होंगे, आइदर इन स्टार्टअप फॉर्म या किसी एमएलसी में या कहीं बाहर कंट्री में, जो भी है, राइट. ऑलवेज हैव गुड फॉलो अप विद देम. उनको आप अपना रिज्यूमे दे दो, उनको जस्ट इतना बोलो कि यार मुझे बस इंटरव्यू शेड्यूल करा दो, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स फ्रॉम यू. बस ये आप अपने जो या तो एम्प्लॉय आईडी मांग लो क्योंकि वो रेफरल कोड होता है, और देयर ईमेल, सो दैट व्हेन यू आर फिलिंग ऑन द वेबसाइट, जो कंपनी की वेबसाइट पे ओपनिंग निकली है, यू कैन पुट दैट एज अ रेफरल आईडी, राइट. तो रेफरल बहुत इंपॉर्टेंट. तो रेफर का मतलब यह है कि भाई लेट्स से यू आर रेफरिंग
योर रिज्यूमे टू मी, तो मेरे को फॉलो भी करो कि यार भाई मैंने आपको रिज्यूमे दिया था, तो कैन यू व्हाट इज दिस अपडेट या कुछ, प्लीज हेल्प मी आउट विद दैट, तो रेफर कर लो। कोल्ड ईमेल कर सकते हो एचआरस को, कोल्ड ईमेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एचआरस की एक लिस्ट बना लो कि किस किस कंपनीज में कौन कौन सी ओपनिंग में हु इज द लीड एचआर हु इज हैंडलिंग इट, और उनको आप भेजते रहो, उनका नंबर भी ले लो, कांटेक्ट भी करते रहो, व्हाट्सअप कर लो या मैसेज कर लो। इट्स ऑलवेज कि यू विल बी इन देयर थॉट कि भाई थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं, उनमें से जो अपडेट दे रहा है बार बार वो टॉप पे आता रहेगा लिस्ट में। आपने मुझसे आज बात करी तो यू विल ऑलवेज माय टॉप, राइट? सो दिस वे यू विल ऑलवेज बी ऑन द टॉप। तो रेफरल हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रेफरल हैज टू बी प्ले। सेकेंड पार्ट ये है कि रिज्यूमे बहुत सॉलिड रखो, उसको बहुत अच्छे से डिजाइन करो, मतलब उसमें ऐसे देखो, मैंने एक रिज्यूमे बनाया, रिज्यूमे मैंने बनाया जेनेरिक, हम ये करते हैं, वी बिल्ड अ जेनेरिक रिज्यूमे। और फ्लिपकार्ट में एक सॉफ्टवेयर इंटर्न की लेट्स से ओपनिंग निकली फॉर यू गाइस, तुमने उसका जेडी पढ़ा भी नहीं, बस रिज्यूमे डाल दिया, राइट? ऐसा होगा ना कि फ्लिपकार्ट इज अ कंपनी जो बहुत ऑटोमेशन कर रही है, वो उसके टूल्स हैं, इट विल बी जस्ट गोइंग द synopsis of the resume using any language model or any lexical analysis or anything, and they will find out ki whether this resume is fit for this JD or not. तो what I will suggest you, एक resume जो है आप एक JD के बेसिस पे बनाओ। अरे यार मुझे जो बंदा चाहिए और दूसरी कंपनी को जो बंदा चाहिए तो वो डिफरेंट है ना। मैंने मेरे JD में लिखा हुआ है ये चीज आनी चाहिए इसको, दूसरे बंदे ने कुछ और लिखा हुआ है, और तुम उसको दोनों को सेम दे रहे हो। मैं बता रहा हूँ आपका, दोनों में ही सिलेक्शन फर्स्ट फेज पे इंटरव्यू कॉल ही नहीं आएगा। ऑलवेज गो विद कि जेडी लेके क्या चेंज करना है मुझे, राइट? यूज चैट जीपीटी फॉर दैट। आप जेडी को पूरा कॉपी पेस्ट मार दो चैट जीपीटी में और नीचे लिख दो कि जनरेट रिज्यूमे फॉर दिस जॉब ओपनिंग, वहां पे आपको बहुत कुछ लिख के देगा, वहां से कॉपी पेस्ट मार दो, वो भी इनफ है, राइट? तो एक पर्सनलाइज रिज्यूमे बनाओ, एक कवर लेटर बना के रखो, वो बहुत हेल्प, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में बहुत हर्डल्स हैं, वंस यू आर देयर हर्डल कम हो गए। स्टार्टिंग का हर्डल कहां से, हसल कहां से स्टार्ट होगा? हमसे, हमने कितना एफर्ट डाला है उस पर। अब बोल रहे हैं कि यार आपने कुछ प्रोजेक्ट नहीं करे, कंपनी ऐसा बोलते हैं ना, आपने कुछ प्रोजेक्ट नहीं किए, आपको कुछ नहीं आता, आपने बस एकेडमिया पढ़ा हुआ है। प्रोजेक्ट कौन देगा आपको यार? आपको खुद को स्टार्ट करना है। सो लेट्स अज्यूम कि मैं आज एक वेब डेवलपर हूं, मुझे एआई समझना है, तो मैं किसी कंपनी को ढूंढ रहा हूं कि भाई मुझे एआई की जॉब दे दो, और कंपनी वाले बोल रहे हैं आपको प्रायर एक्सपीरियंस ही नहीं है एआई में। तो हसल हैज टू स्टार्ट टुडे। आप खुद अपने करंट प्रोजेक्ट में ढूंढो एआई के यूज केसेस व्हिच यू कैन बिल्ड। तो आप एआई के यूज केस खुद ही करंट प्रोजेक्ट में ढूंढ रहे हो कि भाई इस प्रॉब्लम को मैं एआई से कैसे सॉल्व कर सकता हूं। ना तो मैनेजर ने पूछा, ना किसी कॉलीग ने पूछा, बट आपने एक्स्ट्रा टाइम निकाली, क्योंकि आपको पड़ी है ना जॉब चेंज करने की या आगे बढ़ने की। तो यू हैव टू स्पेयर सम एक्स्ट्रा टाइम जहां पे आप खुद ही यूज केस ढूंढ रहे हो और उसको अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हो, एंड यू आर पुटिंग इट ऑन योर रिज्यूमे। कंपनी में काम आया नहीं आया, डिप्लॉय हुआ नहीं हुआ, बट यू डिड पुट ऑन रिज्यूमे। सेट कि भाई ये एक्सपेरिमेंटेशन हुआ था, बट ये एक्सेप्ट होगा नहीं होगा पता नहीं, पर दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। तुम कर रहे हो ना, झूठ थोड़ी है। तो तुमने खुद ने एक्सपीरियंस बना लिया ना अपना। एंड इंटरव्यूअर क्या करता है कि पूछता है तुमसे, वो ये चेक करने थोड़ी है तुमने क्या किया क्या नहीं किया। इफ आई एम आस्किंग समथिंग टू यू, योर एक्सपीरियंस, हाउ डिड यू डू योर अप्रोच, एंड यू आर आंसरिंग इट वेल, यू आर सिलेक्टेड। सो डोंट लुक फॉर अपॉर्चुनिटी कोई आके तुम्हें देने वाला है, अभी से खुद ही स्टार्ट कर दो ना। ब्लॉकचेन में जाना है तो ट्राई टू बिल्ड योर ओन स्मॉल प्रोजेक्ट फर्स्ट। कहां पे कि मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं जिसकी गिटहब रिपोजिटरी बन गई, नो मैन। अभी आप कॉलेज में हो तो कॉलेज के लिए ब्लॉकचेन कहां यूज होगा वो बताओ ना। तो वो बहुत प्रैक्टिकल लगेगा किसी बंदे को कि यार इस कॉलेज में था, इसने ब्लॉकचेन का यूज केस देखा, एंड दिस इज व्हाट ही हैज बिल्ट। तो ऑटोमेटिकली डोर ओपन हो गया ना, व्हिच लुक्स मोर रियलिस्टिक। आजकल लोग क्या करते हैं कि गिटहब में गए, कुछ मिल गया और कॉपी कर लिया रेपोजिटरी को, एंड दिस दैट दिस मैंने किया, कुछ चेंज कर दिया, तो उससे वो उस समय तो हीरो बन गया। व्हाट अबाउट द अपकमिंग डेज जहाँ पे उसको रियल टाइम प्रॉब्लम मिलेगी, राइट? सो थिंक ऑन दोज एस्पेक्ट कि भाई मुझे ही असल स्टार्ट करना है, मुझे ही सीखना है, और कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करेगा, मुझे खुद को आगे देखना है कि हाँ यार अगर वो ये मांग रहे हैं कि एक्सपीरियंस चाहिए तो मैं एक्सपीरियंस खुद क्रिएट कर रहा हूँ ना, लाइक दैट। ओके सर, जैसे अपन ने रिज्यूमे के बारे में बात करा, अपन ने क्या क्या चीज़ें करनी है उसके बारे में बात करा। लेट्स टॉक अबाउट इंटरव्यूज, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, जहाँ यू हैव टू बी वन ऑन वन विद द इंटरव्यू, एंड यू आपके सामने बैठे होंगे वो, एंड दे आस्क क्वेश्चंस। सो वहाँ क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है, क्या चीज़ें बिल्कुल ही स्किप करनी है, एंड
हाउ टू बी वेरी प्रिसाइज, वेरी अपीलिंग टू द इंटरव्यूअर कि हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाए. So I think, yeah, this is right. So most of the time today, I think all these interviews are happening virtually. I think most of the companies only for final rounds they ask you to come, but I think we see either video conferencing or Zoom meetings. I think they use. So interview के time पे it has to be like यार हर क्वेश्चन को सुनते ही जंप मत करो सोल्यूशन पे. इंटरव्यू को अपना पूरा क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहा होता हूँ, आई हैव सीन दैट कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहा होता हूँ, तो आगे जो बंदा बैठा है एक कीवर्ड बोला मैंने, तो उसको लगता है कि उस कीवर्ड से रिलेटेड वो जितना जानता है वो बक दे. राइट, दिस इज व्हाट हैपेंस. मैंने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट खत्म भी नहीं किया है. राइट, तो जैसे मान लो कि हम लोग एआई की बात कर रहे हैं और मैंने बोला कि यार व्हाट आर द एंसेंबल टेक्निक्स इन एआई, ऐसे कौन से मॉडल्स हैं, तो जैसे एंसेंबल वर्ड सुनते ही विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट एआई मॉडल्स. मैंने मुझे खत्म करने दो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट खत्म. बी अ गुड लिसनर इन इंटरव्यूज ऑल्सो. ऐसा नहीं कि इंटरव्यू में मैं बोलने जा रहा हूँ. इफ यू आर अ वेरी गुड लिसनर इन इंटरव्यूज, आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है. देयर इज अ गुड सेइंग, इफ यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेरी वेल, 50% of the solution is already done. Kendall's law. Yes. Kendall's law. Yeah. तो 50% of the problem तभी सॉल्व हो गई जब मैंने क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया. राइट, तो वहां पे भी लिसनर बन के बैठो यार, वो देगा चांस आपको बोलने का. लेकिन वहां मैं बड़ कर रहा हूँ और कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ भी, वहां पे तो इंप्रेशन डाउन ही हो गया ना. भाई पीएम मोदी पे तो बोलते समय बहुत गैप लेते हैं ना. अटल बिहारी वाजपेयी भी बहुत धीरे धीरे बोलते थे ना, लेकिन हर वर्ड में एक वेट था. बिहेव लाइक दैट. मतलब ये नहीं करा कि वहां पे तुम स्ट्रेच कर दो. मैं बस उस चीज से आपको बचाना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे कीवर्ड सुनते ही यू स्टार्टेड बम 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 एक सांस में बोलते आ रहे हो और वो रिलेवेंट ही नहीं है. पूरा क्वेश्चन समझो एंड देन यू थिंक कि आई जस्ट नीड 2 seconds. ये सब चीजें स्लोली करोगे ना तो आप अच्छा आंसर दे पाओगे. और अगर बिना सोच समझे कुछ भी किया तो, और वहां पे इंप्रेशन जमाने की कोशिश ऐसे नहीं करने कि हाँ ये मैंने ये भी किया है, हाँ 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 ये आता है आपको, हाँ हाँ ये भी आता है, ये आता है, हाँ. वो आपको पूछ रहा है यार कि ये बंदा डेप्थ वाला है या विड्थ वाला है. तो जिस जेडी में जो की पॉइंट्स थे उनको आप डेप्थली पढ़ो पहले कि जेडी में क्या मांगा था, जॉब डिस्क्रिप्शन में, कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या था, उन टॉपिक्स को ढंग से पढ़ के जाओ. क्योंकि जो जेडी में मांगा है उसका डेप्थ आपको जरूरी है. जेडी के बाहर वो कुछ भी बोले ना, बोले आई डोंट नो मच अबाउट दैट बट आई कैन डू इट. तो इंटरव्यू कॉन्फिडेंस तभी आ जाएगा आप रुक रहे हो, थम रहे हो. थम जाओगे तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन आप भागोगे तो कॉन्फिडेंस 0 हो जाएगा. और कोई चीज नहीं आती है तो बेटर है यार, गंदा बोलने से अच्छा है कि हम चुप रहे. तो दैट इज कि भाई आई डोंट नो दिस बट आई कैन सॉल्व अनदर प्रॉब्लम और समथिंग, क्योंकि उसमें उसका भी टाइम बच गया और एनीवेज आपका सिलेक्शन नहीं होना अगर आपको ढंग से नहीं आ रहा है तो. और आजकल के इंटरव्यूज ऐसे नहीं होते कि डिफाइन समथिंग, टेल मी द डेफिनेशन ऑफ इट, कि इसका कोड सिंटैक्टिकली करेक्ट है. भाई सिंटैक्स विंटैक्स का काम जमाना गया, ये लॉजिकल थिंकिंग है. और आप कोड लिख रहे हो, कोड में सेंटेंस में लिख रहे हो ना कि मैं ऐसे करूंगा फिर मैं ऐसे करूंगा, ये ऐसे होगा ये ऐसे होगा. सूडो कोड भी नहीं लिख रहे हो, इनफ है, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है, क्योंकि कोड तो आप कर लोगे क्योंकि आप डेवलपर हो, आप कर लोगे. सर सर जैसे इंटरव्यूज हो गए, सब कुछ हो गया, बट उसके बाद में जब पीपल फेल तो डीमोटिवेशन एक काफी बड़ा फैक्टर आ जाता है कि यार नहीं हो पा रहा. एंड दैट जैसे वो आता है, पीपल थिंक कि चलो मिनिमलिज्म की तरफ जाते हैं कि मुझे इस रोल के लिए तो नहीं मिला, इस छोटे से रोल के लिए ट्राई करता हूँ, एंड देन फिर वो उसी चीज में अटक के रह जाते हैं. तो वो जो चीज यहाँ मिल सकती थी शायद नेक्स्ट ट्राई पे 2-3 बार ट्राई करने पे वो चीज फिर यहाँ सेटल हो जाते हैं एंड दे लिव लाइक दैट ओनली. तो वहां पर डिमोटिवेशन से कैसे डील करा जाए कि अगली बार जब ट्राई करो तो यहाँ नहीं यहीं पे जाए अपन. देखो यही है, मतलब कि मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग हो सकता है अकॉर्डिंग टू मतलब अदर पीपल. इस प्रॉब्लम को मैं कैसे लेता हूँ कि यार लेट्स टॉक अबाउट कि व्हेन आई एम टॉकिंग टू डिफरेंट इन्वेस्टर्स, एक ही बात है ना. तो हाँ भाई इन्होंने मना कर दिया. यू हैव हंड्रेड्स ऑफ मीटिंग्स विद इन्वेस्टर्स और सब मना कर देते हैं, करेंगे कुछ आपको देख के बोल देते हैं कि ठीक है आई गोना इन्वेस्ट समथिंग, दैट इज नॉट इनफ. तो 2 चीजें इसकी, हमेशा गोल बड़ा है लेकिन जो मिल रहा है
उसको डीवैल्यू मत करो, राइट? तो जो मिल रहा है उसको डीवैल्यू मत करो। मतलब ऐसा है कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे को गूगल में जाना है और मैं गूगल में ही जाके रहूंगा, बहुत अच्छा एम है, इट्स अ वेरी गुड एम, लेकिन आपने उसको इनफ टाइम दे दिया ऑलरेडी, 3 मंथ्स दे दिए, 4 मंथ्स दे दिए, 6 मंथ्स दे दिए, हो नहीं रहा है, इट्स ओके, जहाँ हो वहां जाओ, पर वहां गोल खत्म मत करो, वहां सेटल मत, वहां पे जो सेटल होने की बात है ना वो गलत है। यू अगेन ट्राई, वहां से भी कर सकते हो ना ट्राई, तो नेवर सेटल। अब सेटल मत हो वहां पे कि यार मेरा अब नहीं हो रहा तो मैं अब भाई मैं यही रहूंगा, नहीं, उस सिनेरियो को देखो। अगर आपके पास इनफ बैंडविड्थ है, इनफ टाइम है कि नहीं यार मैं अभी भी और टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जैसे लोग ना 3-4 साल आईएएस की प्रिपरेशन करने में लगे हुए हैं और नहीं हो रहा उनका, मैंने नहीं किया, राइट? क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे लगा ठीक है यार मैं नहीं बनाऊँ ना, जिस चीज के लिए मैं बनाऊँ उस पर अच्छा करता हूँ। तो बीइंग एन इंजीनियर, मुझे इंजीनियरिंग अच्छा लगता था तो मैंने नहीं किया, लेकिन मैं फैमिली फोर्स में अलॉट कि भाई यहाँ कर लो, तो ऐसे करके तो सेटल नहीं होना है। यू थिंक कि भाई इंटरव्यू नहीं हो रहा है क्लियर, डिमोटिवेशन होके स्टॉप मत हो, ये एक प्रॉब्लम है। बस डिमोटिवेट हो, क्योंकि डिमोटिवेट नहीं होगे तो आपको मोटिवेशन का प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा फिर, तो वहां पे स्टॉप मत हो, नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगेन ट्राई अगेन, क्योंकि देखो कोई चीज आसानी से मिल गई ना उसकी वैल्यू नहीं होगी, और जब मिली बहुत टाइम में तो आई विल वैल्यू इट अलॉट। तो अगर गूगल आपको ऐसे हायर कर लेगी तो आप वैल्यू ही नहीं करोगे ना उसकी। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? यस सर। अच्छा, एक चीज और है इसमें समझने की, जो लोग स्टार्टिंग में बहुत लो पे रहते हैं ना, वही बाद में यहाँ पहुंचते हैं। ऐसा है, मतलब कि इफ हाफ ऑफ लाइफ वाज इन स्ट्रगल, या अदर हाफ लाइफ, ऐसा कई जगह पढ़ा है मैंने, मतलब आई डोंट नो हु हैज सेड दिस, द अदर हाफ लाइफ वुड बी लग्जरियस। तो ऐसा होता है ना, बिजनेस के स्टार्टिंग के 4-5 साल आपके बहुत हसल में जाते हैं, हर्डल्स में जाते हैं, एंड देन यू लिव अ वेरी गुड लाइफ। दिस इज हाउ इट हैपेंस। सो इनिशियल में जो फेलियर्स हो रहा है उनसे घबराना नहीं है, यू हैव टू फाइट इट। Okay, sir. So on the parting note, what advices you want to give as a senior to juniors और जो भी हमारे viewers है उन सबको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप अपनी होल जर्नी से? देखो, वन लाइनर तो मेरा नेवर सेटल वाला ही है। आई डोंट नो हाउ OnePlus हैज टेकन दिस, बट या डोंट बी सेटल ऑन व्हाटएवर यू आर टुडे। अगर सेटल हो गए तो मतलब आप बुढ़े हो गए हो, तो 60 के बाद ही सेटल होने का सोचना, उससे पहले जितना हासिल कर सकते हो, जितनी रिस्क ले सकते हो, ऑलवेज डू दैट। रिस्क का मतलब ये कभी नहीं, ऑलवेज डू अ कैलकुलेटिव रिस्क, कि मैंने कुछ भी कर दिया और वो रिस्क ले लिया, नहीं नहीं नहीं, कैलकुलेट होके करो। एंड द थिंग इज, जो भी आप कर रहे हो उसको ऊपर ऊपर से ना देख के गो इन डेप्थ। मैंने ये गलतियां बहुत करी हैं स्टार्टिंग में, व्हेन आई यूज्ड टू बी लाइक हे मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, देन आई अंडरस्टूड। जब मैं अच्छे लोगों के साथ बैठा, मुझे पता चला कि नहीं यार, द वैल्यू इज फॉर डेप्थ। अगर आपको डेप्थ पता है तो ही आपकी वैल्यू है, अदरवाइज आपकी वैल्यू नहीं है। सो आई विल कंक्लूड विद दैट कि भाई जल्दी से सीखो, सीखने का वेट मत करो, जो सीख लिया है उससे कुछ इंप्लीमेंट कर लो, उसको बेस्ट बनाने की कोशिश मत करो, लेकिन गोल बेस्ट का रखो। ये वेट मत करो कि यार मैं कल कुछ सीखूंगा जब वो ज्यादा पॉपुलरिटी आएगी। जैसे इफ यू सी माय जर्नी, राइट, बीइंग एन इंजीनियर, कमिंग टू ब्लॉकचेन एंड देन एआई, आई वाज ऑलवेज बी अडॉप्टिव किया। अब अच्छा ब्लॉकचेन का ज्यादा चल रहा है, अभी लोग वेब3 की तरफ भाग रहे हैं, व्हाट इज दैट, अंडरस्टैंड इट, इंप्लीमेंट कर लो। देन कि यार एआई पॉपुलर हो रहा है, जीपीयूज ये वो, तो आई स्टार्ट माय स्टार्टअप ऑन एआई ओनली, राइट? सो यू हैव टू बी लाइक अर्ली अडॉप्टर्स ऑफ एवरीथिंग। इस तरीके से मतलब यू हैव टू थिंक ऑफ फॉर योर होल लाइफ। Okay, thank you so much sir for joining us today and it was wonderful talking to you. हमारे listeners को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला हुआ and thank you so much sir for being here. Yeah, my pleasure, and thank you so much for joining us here. Thank you so much.